Assalamu alaikum, Sohail. Walaikum Assalam. Nice to see you. MashaAllah, you're doing a great job. Jazakallah. यहाँ बच्चे भी काफी मौजूद हैं. हाँ माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ जबरदस्त इंतजाम है आपका और इसको it is interesting to see so many familiar faces. Today is a big day for us. चलिए तो फॉर्मली स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and okay. Good morning and I welcome you all to the laptop distribution ceremony of NIT Scholars of year 2022. My name is Daniel Azam and I am a student of final year electrical engineering department and I am currently serving as a lead scholar in NIT Scholars for the year 2022 and I am a freelancer as a I serve as a part-time job and I train people who would love to work as a freelance to do their work as freelance business. So NIT Scholars is not just a scholarship that provides the financial assistance to the students, but also provide the mentorships, internships, and the regular assistance to the students, which is needed to guide them in their undergrad life. To formally start the event, I would like to call Sayyid Hamid Hussain. Hamid is also part of NIT Scholars and is an active member, and he would be having a few verses of Holy Quran with us. Hamid, you may join us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Translation. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Everything in the heavens and earth belongs to Allah. Now all your intentions, either you reveal or conceal, Allah will judge. Then He may forgive you or punish you as He decides. And no one other than Allah has the absolute authority. So what was revealed from Lord, Messenger accepted and believers also followed. In fact, they all believed in Allah, His angels, His holy books, and all the messengers. Believer says, we make no distinction in His messengers, and they also say, we accept all and follow. We seek forgiveness of Lord, and to Him we have to return. Be sure,
Allah never burdens anyone beyond the capacity. Everyone will be treated according to the deeds. Believers pray, O Lord, forgive us for our intended and unintended mistakes. O Lord, don't impose such burden on us which you place on the people before us. O Lord, don't put such burden on us which we can't sustain. Be kind to us. Forgive us and be merciful to us. You are our protector, thus help us against disbelievers. Sadaqallahul Azim. Jazakallah Hamid. Now I would like to call Mr. Farooq Jamal to share a few words with us. अस्सलाम वालेकुम। खास तौर पे शेखुल जामिया साहब, बाकी मेहमान गिरामी और प्यारे बच्चों, तालिब इल्म साथियों, बारिश के कतरे जब रेगिस्तान पे गिरते हैं सहरा में तो जज्ब हो जाते हैं, फना हो जाते हैं। वही कतरे जब जरखेज जमीन पे गिरते हैं तो गुलो गुलजार बन जाते हैं, और जब सीप के मोती में जाते हैं तो गौहरे आबदार बन जाते हैं। एनईडी स्कॉलर्स ऐसे ही गौहरे आबदार में उन टैलेंट को कन्वर्ट करता है। एनईडी स्कॉलर्स एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि 2007 में बनी थी और यूएसए बेस्ड इस ऑर्गेनाइजेशन के ताने बाने अब पाकिस्तान तक आ पहुंचे हैं। ज्यादातर बल्कि पाकिस्तान में ये एनईडी के बच्चों के लिए नीट कम मेरिट की बुनियाद पर स्कॉलरशिप फराहम करती है। और शुरू में इस वक्त ये दुनिया में और भी कुछ मुल्कों में काम कर रही है स्टेम की प्रमोशन के लिए। और ये खाली स्कॉलरशिप ही नहीं देती बल्कि ये एक जो फलसफा है या जो फिलॉसफी है इस एनईडी स्कॉलर की, वो ये है कि एक आदमी की जिंदगी की ट्रांसफॉर्मेशन फॉर बेटरमेंट एक खानदान की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो इस फलसफे के तहत एक और उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम भी हो जाती है और वो टैलेंट गुरुओं के सक्सेस के इम्कानात को बढ़ा देता है। तो ये वो फिलॉसफी है जो एनईडी स्कॉलर दे रहा है। ये खाली इट इज नॉट जस्ट टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप, रादर एक स्टाइपेंड और फाइनेंशियल सपोर्ट तो है ही, लेकिन ये मेंटोरशिप, एक कंटिन्यूअस मेंटोरशिप देते हैं अपने प्लेटफॉर्म से। एंड बिसाइड दिस एक इंटर्नशिप है जो कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में और वर्क एरिया में लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एट द एंड ऑफ स्कॉलरशिप्स एंड सच इंटर्नशिप्स ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, सर्टिफाइड ट्रेनिंग्स। तो जब हम ये शुरू किया था एनईडी में डॉक्टर सुहेल और कुछ साथियों ने, तो ये हमारे 4 साथी जो हमसे जुदा हो गए थे एनईडी की तालीम के दौरान, उनके नाम पर ये 4 डिफरेंट स्कॉलरशिप शुरू की गई थी। इसमें एक हारून किरमानी मरहूम थे, एक अबू अथर मरहूम थे, शब्बीर अहमद मरहूम थे और वकार अहमद मरहूम थे। इनके नाम पर मेमोरियल स्कॉलरशिप 4 शुरू की गई, जिसके बाद हमने इसको एनईडी स्कॉलर्स के नाम पर ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल दी और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तफसीलात अभी बताएंगे कुछ लोग। लेकिन उससे ज्यादा अफसोसनाक बात यह हुई कि पिछले साल हमने अपने 3 साथी और खोए, जिनमें एक फाउंडर मेंबर भी थे, को फाउंडर थे इसके एनईडी स्कॉलर्स के, सर सफदर के नाम से जो मशहूर थे। हम उनको अपनी दुआ में याद रखते हैं। अल्लाह ताला हमारे इन तमाम साथियों की मगफिरत करे। इसके अलावा एक मसूद हमारे साथी थे जो हमारे क्लास फेलो थे, उनका कोविड में इंतकाल हुआ। और फिर एक हमारे जावेद महमूद साथी थे जो जिन्होंने एक इज्तिमा करने का एक खास तौर पर रमजान में एहतमाम कर रखा था कई सालों से। तो ये सब साथी हमारे पिछले कई अरसे में दौरान में हमसे जुदा हुए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन सब की मगफिरत फरमाए और इनके दर्जात बुलंद करे और इनके लवाक़ीन को सब्र जमील अता करे। जैसे मैंने पहले कहा कि अब एनईडी स्कॉलर्स पाकिस्तान के अंदर भी चैप्टर शुरू हो चुका है और वो जो कहते हैं ना कि एक चिराग काफी है, इस शहर के अंधेरे को एक चिराग काफी है, 100 चिराग जलते हैं एक चिराग के जलने से।
तो जो एक चिराग जला था, अब अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार चिराग एनईडी स्कॉलर्स के बन गए हैं और इन्हीं चिरागों से अब रोशनी होगी। ये जो एनईडी स्कॉलर्स के वो यंग बच्चे जो कुछ अर्से पहले एनईडी में तालीम हासिल कर रहे थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी जॉब पर हैं और उन्होंने ज़माम कार संभालनी शुरू कर दी है एनईडी स्कॉलर्स की। इसमें एनईडी स्कॉलर्स की जो अलुमनाई हैं उसमें ताबिश अनीस साहब प्रेसिडेंट हैं इस एनईडी स्कॉलर्स एंड नेट्स पाकिस्तान के, सैयद उमैद अहमद जनरल सेक्रेटरी हैं और रईस बादशाह साहब फाइनेंस को देखते हैं, इकरा बीबी फाउंडिंग मेंबर हैं इसकी, तहार शम्स भी फाउंडिंग मेंबर हैं। इनके साथ हमारे एनईडी के हमारे क्लास फेलो एनईडी यूटी के अलुमनाई हैं जिनमें मोहम्मद उस्मान साहब हैं, यहाँ तशरीफ रखते हैं, आरिफ हबीब साहब हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, आजाद साहब हैं, आजाद खान साहब वो भी यहाँ मौजूद हैं, तारिक अबा उमर आज अपनी काम की मसरूफियात की वजह से यहाँ तशरीफ नहीं लाए क्योंकि आज वर्किंग डे है भारत। तो ये 4 लोग जो हैं वो एनईडी यूटी के अलुमनाई हैं और जैसे मैंने पहले कहा कि अब यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। इसके साथ ही एनईडी के वाइस चांसलर साहब, एनईडी के असातिज़ा, एनईडी की वो टीम जो इस तरह की सेरेमनी के लिए को काबिल बनाती है जिसमें हमें इज्जत अफजाई दी जाती है और एनईडी के वाइस चांसलर खुद बनफ़्स नफीस शेखुल जाना तशरीफ लाते हैं, आज ही मौजूद हैं। इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। Thank you, sir. Now I would like to call Mr. Tabish Anis to give us a brief report of the past year of NID scholars, comprising of some facts and figures. अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ वाइस चांसलर साहब, एनईडी की सीएसए की टीम, असातिज़ा, एनईडी यूएटी के अलुमनाई, अस्सलाम वालेकुम। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर हैं जो पिछले साल हमने अचीवमेंट्स की हैं, तो डॉक्टर साहब ने मौका दिया। बुनियादी तौर पे डॉक्टर साहब की और बाकी सारी टीम की मेहनत है, मैं यहाँ पे सिर्फ एक तोते की तरह उनको पढ़ दूंगा, तो असल तो बुनियादी मेहनतें जो है वो कहीं और हो रही हैं। तो अगर हम पिछले साल को एक नजर में देखें तो 18 से 19 स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप होल्डर रहे हैं पर ईयर हमारे एनईडी स्कॉलर्स के इन 2021। दैट मीन्स के टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप जो है वो 75 के करीब है। तो उनको जो अमाउंट डिसबर्स हुआ है लास्ट ईयर एनईडी से, इट्स अबाउट 7.3 मिलियन पीकेआर। और इन्हीं स्टूडेंट्स के साथ जब कोई फाइनेंशियल हार्डशिप्स आ जाती हैं जो इनके फैमिली मेंबर सपोर्ट नहीं कर पाते, तो एनईडी स्कॉलर उसके लिए भी आउट ऑफ द वे जाके इनको सपोर्ट करती है। तो अराउंड अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियन के करीब हार्डशिप्स के ऊपर लास्ट ईयर एनईडी स्कॉलर्स ने एक्सपेंडिचर किया है स्टूडेंट्स के घरों के लिए। अच्छा, उसके अलावा अगर आप देखें तो एक साल के अंदर एनईडी स्कॉलर्स ने 17 वेबिनार्स अरेंज कराए हैं, दैट इज मोर देन 1 वेबिनार पर मंथ। तो ये जो नए स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए उनके लिए एक बहुत अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग देखें कि आपने सिर्फ एक स्कॉलरशिप हासिल नहीं की, आपने एक सिलसिला हासिल कर लिया, मुसलसल वहां से सीख सकते हैं आप बहुत सारी चीजें। उसके अलावा ट्रेनिंग सेशंस के अंदर 56 ट्रेनिंग सेशंस एक साल में हुए एनईडी स्कॉलर्स के, जिसमें 1 डे ट्रेनिंग है, 1 आवर ट्रेनिंग है, 3 आवर्स ट्रेनिंग है और 1 मंथ ट्रेनिंग से लेकर 3 मंथ्स तक ट्रेनिंग है। इस वक्त भी हमारे साथ कुछ स्कॉलर मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे मुझे मोहम्मद उसामा नजर आए थे। मोहम्मद उसामा सॉलिड वर्क्स के ऊपर ट्रेनिंग करा रहे हैं इस वक्त ऑनलाइन, और सॉलिड वर्क्स आई बिलीव के बहुत एक जरूरी सॉफ्टवेयर है मैकेनिकल इंजीनियर्स और बाकी सारी मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के लिए। इसके अलावा दानियाल आजम है, ये फ्रीलांसिंग के ऊपर ट्रेनिंग कराते हैं और काफी स्टूडेंट्स इनसे हेल्प लेकर फ्रीलांसिंग के अंदर अपने अपने पोर्टफोलियोज लॉन्च कर चुके हैं। इसके अलावा 9 स्टूडेंट्स को एनईडी स्कॉलर्स ने हेल्प करी इंटर्नशिप अप्रोच करने में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर, जिसमें अच्छी इंडस्ट्रीज पाकिस्तान की शामिल है। तो अब ये एक जस्ट इंट्रोडक्शन है। अच्छा, अगर आप देखें तो ओवर द इयर्स हम ग्रो इस तरह हुए हैं कि 2014 के अंदर हम टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स 20 देते थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में 75 स्कॉलरशिप होल्डर स्टूडेंट्स हमारे इस वक्त मौजूद हैं एनईडी के अंदर। तो और इसके साथ जो आपको एक स्क्रीन के ऊपर एनईडी की रिपोर्ट नजर आ रही है, तो उसके अंदर आप देख रहे होंगे कि देयर इज अ प्राइवेट फंडेड स्कॉलरशिप सर्किल ओवर देयर। एनईडी के अंदर जो प्राइवेट फंडेड स्कॉलरशिप्स की तादाद रही है लास्ट ईयर वो है टोटल 504,
ठीक है, 504 scholarships were provided in private funded sector, जिसमें से जिसमें से about 61-62 scholarships सिर्फ NED scholars ने दी है, that is 12% of the whole private funded scholarships. तो NED scholars आहिस्ता आहिस्ता अपना contribution private funding scholarships के अंदर बहुत तेजी से बढ़ाता जा रहा है. अच्छा, अब आप में से how many of you are in their first year? जितने लोग बैठे हुए जरा हाथ रेस करें, कितने लोग फर्स्ट ईयर में बैठे हुए हैं जो पहली दफा इस साल NED स्कॉलर्स में इंडक्ट हुए. अच्छा, अब ये देखिए, ये एक स्टोरी है, यहाँ से 2-3 स्लाइड सिर्फ आप लोगों के लिए, गौर से सुनिएगा. दिस इज अ बॉय मुकेश, और ये एक थर के अंदर एक फार्मर का बेटा है बेसिकली, और फार्मिंग ही करता था NED आने से पहले, साथ में पढ़ाई भी करता रहता था. 4 साल इसने NED में इतना अच्छा पढ़ा कि नाउ ही इज इन 3rd पावर प्लांट, राइट. तो इसने वो नेसेसरी ग्रूमिंग हासिल करी, इसने वो नेसेसरी एजुकेशन हासिल करी व्हिच मेड हिम लैंड इन दैट जॉब. तो आप समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी सक्सेस है कि एक फैमिली का प्रोफेशन तब्दील हो जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में जाके. If the family was doing agriculture, अगली जनरेशन में they are engineering professional. अब मुकेश की जो आगे नस्ल होगी यकीनन वो भी बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट यकीनन होंगे और बहुत अच्छे वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली होगी. नेक्स्ट स्लाइड में जब आप देखेंगे तो आपसे अब ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को मैं कुछ मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि देखिए, दिस इज द कैडर ऑफ द स्टूडेंट व्हिच यू शुड बिलोंग टू. ये देखिए, ये वो स्कॉलर्स हैं जो आपके 3-4 साल आगे के लोग हैं. इसमें आपको हफ्सा नजर आ रही हैं, इन्होंने इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के अंदर NED में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, NED स्कॉलर्स की स्टूडेंट है. अब्दुल बासित हैं, केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर 2nd पोजीशन होल्डर है, NED स्कॉलर्स के रेसिपिएंट हैं. आप में से बहुत सारे लोगों ने मेमन गोट का इलाका नहीं देखा होगा कराची का. अब्दुल बासित बिलोंग्स फ्रॉम मेमन गोट, और आप इनका घर देखेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा, बहुत छोटा सा कच्चा सा घर बना हुआ है, बट स्टिल ही मैनेज्ड टू गेट एवरीथिंग एंड ही मैनेज्ड टू गेट द पोजीशन. एंड यू नेम इट, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर नरमीन की पोजीशन है, उसके अलावा नीचे आपको गुलाम अहमद नजर आ रहे हैं, तैमूर नजर आ रहे हैं. देयर आर मेनी सक्सेस स्टोरीज लाइक दैट. अगर आप ये देखना चाहें कि हमारे पास जो स्कॉलरशिप के रिजल्ट्स आते हैं जिन स्टूडेंट्स के, तो वो रिजल्ट्स किस तरह के हैं, तो उस पर अगर एक नजर डालें कि 95% of all the results are 3.7 CGPA और above it. बहुत ही कोई कम फ्रैक्शन ऑफ NED स्कॉलर्स है जो 3.7 CGPA से नीचे होता है. जैसे कि मैंने कहा कि ये बात मैं कर रहा हूँ सारे के सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो आज स्कॉलरशिप के अंदर इंडक्ट हुए हैं. वो अपना रास्ता देख लें, वो अपनी क्लास देख लें कि वो किस क्लास की स्कॉलरशिप के अंदर आए हैं. तो आपको सारे नेसेसरी गैजेट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लैपटॉप प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अच्छी स्कॉलरशिप का अमाउंट प्रोवाइड किया जा रहा है, मेंटरशिप प्रोवाइड की जा रही है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है. उसके साथ साथ आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप CGPA कम लेके आए, बिकॉज योर CGPA डिफाइंस वेरी वेरी पिवटल पॉइंट इन योर करियर. चाहे आपको कोई कुछ भी कहता रहे, आप अगर अच्छी CGPA लेकर NED से निकलते हैं तो दिस इज फर्स्ट थिंग जो आपने अचीव करी है यहाँ से, बाकी सब चीजें बाद में अचीव करी है. उसके अलावा 21 out of 75 स्टूडेंट्स आर इन टॉप 10 पोजीशन ऑफ देयर क्लासेस. तो आप अंदाजा लगाएं कि वो किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं. आप में भी यही मोटिवेशन लेके यहाँ से जाना है. इसी तरीके से 17 स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन फ्रीलांसिंग, 5 स्टूडेंट्स हैव गॉट मेजर सर्टिफिकेशंस. इसमें उसामा का नाम मैंने लिया. उसामा के पास सॉलिड वर्क्स की इंटरनेशनल एजुकेशन है माशाल्लाह, एंड उसामा इज आल्सो गोइंग फॉर फार्मूला रेसर ऑफ NED. इस साल वो अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं NED फार्मूला रेसर के अंदर. फिर अभी फरूक जमान साहब ने कहा कि 1% विद राइट एजुकेशन कैन चेंज द लाइफ ऑफ देयर फैमिली. तो अब आप देखें फैमिलीज की लाइफ कैसे चेंज होती है. बहुत सारे स्टूडेंट्स NED के जो आते हैं वो नॉर्मली पुअर और मिडिल बैकग्राउंड से आते हैं. बहुत बिल्कुल सफेद हकीकत है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से NED के लोग ग्रास रूट लेवल से आते हैं. आप ये देखें कि जो स्टूडेंट अच्छा पढ़ के निकलते हैं तो जो पहली सैलरी हमारे NED स्कॉलर्स में अच्छी सैलरीज में से मिलती है, उनमें से एक स्टूडेंट को 1,35,000 रुपए की जॉब पहली सैलरी की मिली है. और 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद आज वो स्कॉलर्स नॉर्मली 2.25 लाख 2.5 लाख रुपए की सैलरीज के ऊपर काम कर रहे हैं, राइट. तो आप आज जहां खड़े हैं उससे 6 साल 7 साल बाद अपने आप को प्रोजेक्ट करें कि आपने इस नंबर को बीट करना है, आपने इस नंबर को एक्सीड करना है, राइट. इसी तरीके से अगर आप एवरेज सैलरीज निकालेंगे, यानी कि जो बच्चे थोड़ा कम सैलरी वाले हैं, ज्यादा सैलरी वाले हैं, NED स्कॉलर्स ट्रैक करता रहता है अपने स्टूडेंट्स को ना. आज हम भी अगर कहीं काम कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब फोन करके पूछ लेते हैं भाई क्या कर रहे हो, कितने पैसों में काम कर रहे हो, वगैरह वगैरह. तो एवरेज सैलरी एक स्कॉलर 30,000 से 65,000 लेता है यहाँ से निकलने के बाद, राइट.
और एक स्टूडेंट हमारी जो इमशा है वो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप की विनर है और वो यूएसए में इस वक्त पढ़ रही है। तो ये डॉक्टर साहब जो है वो फर्दर आपको उसके बारे में गाइड कर सकते हैं। यस्टरडे भी, कल भी एक सेशन हुआ है स्टडी अब्रॉड पे डॉक्टर साहब का। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने लिया, गालिबन लिया, राइट? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई हैंड ओवर टू दानियाल नाउ। Thank you so much, Davish bhai. And these are some amazing facts of NIT scholars. यही बातें जो NIT scholars को काफी यूनिक बनाती हैं. Now I would like to bring the attention of all of you guys towards one great and unique initiative of NIT scholars, which is Dare to Design. एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर क्लास थर्ड से लेके सेकंड ईयर तक के स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम प्रोवाइड की गई, या फिर कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रॉब्लम जो दुनिया में तमाम लोग फेस करते हैं, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक इनिशिएटिव दिया गया, ट्रेनिंग दी गई कि उसके लिए कोई बाकायदा एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। तो जो डेयर टू डिजाइन है, ये एक ईस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट है जिसको NIT स्कॉलर्स पार्टनरशिप के साथ चला रही है, और NIT स्कॉलर्स is a international partner of Dare to Design project, and which is NIT Scholars funds this program in Pakistan, especially in Karachi. So total 5 ग्रुप्स थे जिन्होंने प्रोजेक्ट्स जो डिसाइड किए थे, और हर ग्रुप का एक मेंटोर था, और जो मेंटोर था वो भी हमारा एक NIT स्कॉलर्स का एक स्टूडेंट है। तो जो भी प्रोजेक्ट्स थे हमारे पास, उसके अंदर एक यूनिक बात थी कि हर जो ग्रुप था उसने एक कंप्लीटली एक नई चीज बनाई है जो कि इससे पहले दुनिया में कह सकते हैं किसी बंदे ने नहीं बनाई। तो हर बंदे की अपनी कैपेसिटी है। अब क्लास थर्ड का बच्चा और एक क्लास 12 के बच्चे के दरमियान एक गैप तो होता है, एकेडमिक गैप तो है, लेकिन उस क्लास थर्ड के बच्चे ने भी और क्लास 12 के बच्चे ने भी अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ एक प्रोजेक्ट तैयार किया। सो वी स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट इन नवंबर 2021, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इन March 2022 we have completed the prototype, and that prototype is available, and everyone can pay a visit to the group once we have concluded the ceremony. So there are total 5 projects, and I would like to tell you the name of the projects and who is leading that project. So the first project is Task Reminder, and Task Reminder is led by Tahira Akram. Tahira is 4th year student of electronic department, and second project is of biogas for home. जैसे कि आजकल पता ही है कि गैस के काफी मसले रहते हैं, जो भी सुई गैस के मसले मसाइल हैं उसको कैटर करने के लिए बायोगैस का एक सोल्यूशन जो है प्रोवाइड किया गया स्टूडेंट्स की तरफ से। और ये जो प्रोजेक्ट था ये किसी फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर के बच्चे ने नहीं बनाया, बल्कि काफी स्मॉल एज ग्रुप के बच्चे थे, उन्होंने इसको बनाया। तो ये काफी बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि हमने मतलब इस बारे में सोचा नहीं होगा, लेकिन उस चीज के बारे में बाकायदा एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना ये काफी बड़ी बात है कि एक 5 क्लास का बच्चा 3 क्लास का बच्चा इसको सॉल्व कर रहा है। सो दिस प्रोजेक्ट वाज लेड बाय Ashim, and she's a student of 3rd year textile department, and third project is about accident preventer. So this project is done by the use of technology of AI, and this project is led by Sidra Khurshid. And fourth one was of smart AI classes for blind people, and this project was led by Suzanne of 4th year electronics department. And the last one, but not the least, which was led by me, and that project name was Smart Toolbox. वो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, बट इट डजंट मीन कि हमने उसके अंदर उसी चीज को हमने शोकेस कर दिया, बल्कि हमने स्पिल बॉक्स को थोड़ा ऑटोमेट किया है ताकि जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनको जो है वो कह सकते हैं उनके लिए डेडिकेट किया है ताकि वो उसको इस्तेमाल करने में उनको आसानी हो। सो डेयर टू डिजाइन का जो पूरा होल मकसद है वो बस ये है कि जो जो बच्चे हैं 3 से लेकर 12 के दरमियान, वो उनकी उस लर्निंग फेज के अंदर उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की एबिलिटी उनके अंदर अभी से पॉलिश करना स्टार्ट करें, क्योंकि जब वो पहुंचेंगे अंडर लाइफ के अंदर तो उनके पास एक ऐसा स्किल सेट होगा जो कि उनको स्टैंड आउट करेगा दूसरे स्टूडेंट से, और उनकी सीवी और उनकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ये आगे जाके बहुत हेल्प करने वाला है। सो दिस वाज डेयर टू डिजाइन, एंड everyone can visit the groups, and they can see the projects once we are done with the ceremony.
So I would like to call Honorable Vice Chancellor of NID UET, Professor Dr. Sarosh Hashmat Lodi, to have a few words with us and distribute the laptops among the students. Bismillahirrahmanirrahim. My dear friend Dr. Sohail Ahmed, Farooq Jamal Saab, Azad Saab, Usman Saab, Arif Habib Saab, my colleagues, dear students, Assalamu alaikum and a very good morning. सोहेल के लिए सिर्फ एक ही बात ज़हन में आती है, वो ये है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया. This is how the whole thing started, and I know Sohail and the rest of these people for almost 42 years now, and I've seen the growth of NED scholars over the last 15 years, I reckon. और इन्होंने जो काम किया, this is phenomenal. It's beyond words. It cannot be explained. जो बच्चे इसके recipients हैं और जिन्होंने past में इससे benefit लिया है, वो इस बात को समझ सकते हैं कि it's not scholarship. It's tarbiyat. The way they're hand-holding people, the way they are providing the support, the benevolence, the guidance. It's phenomenal and tremendous. So thank you, Sohail and rest of the team. You're doing a tremendous job. इसका अजर अल्लाह ताला ही आपको दे सकता है. हम सिर्फ उसके को तारीफ कर सकते हैं और इसको रोल मॉडल के तौर पे बना सकते हैं. NED यूनिवर्सिटी में जब से मेरा ताल्लुक इदारे से है, कोई 42 साल हो गए हैं, मैंने देखा कि हमारे पास लोअर मिडिल क्लास के बच्चे ही तालीम हासिल करते हैं. इसके बावजूद के दोनों हर तरह के लोग हैं, लेकिन बड़ी तादाद उसकी जो है वो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती है. लेकिन एक बात मैंने कॉमन देखी कि जो बच्चे यहाँ से डिग्री लेके जाते हैं और अपना काम ईमानदारी से करते हैं, उनकी फैमिलीज ट्रांसफॉर्म हो जाती है. कोई गुर्बत किसी की मिरास तो है नहीं, ना किसी के कंट्रोल में है. ऑनेस्टली आप जिस घराने में पैदा हो गए सो हो गए, लेकिन यू राइट योर ओन डेस्टिनी, यू राइट योर ओन फ्यूचर. अल्लाह ताला से राब्ता तो करें, और अल्लाह ताला से राब्ता करने का सबसे आसान तरीका मेहनत है. जो मेहनत करता है अल्लाह ताला उसके लिए उसी तरह के रास्ते खोलता चला जाता है. और आप लोग खुश नसीब हैं कि आपका हाथ जो है वो NED स्कॉलर्स ने थाम लिया है, और जिस तरह की ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये न जाने कितने लोगों की जिंदगियां ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं डायरेक्टली, और न जाने उससे कितने ज्यादा लोगों की जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर सके इनडायरेक्टली. लैपटॉप देना या ये करना मेरी नजर में बहुत अहम चीज है, और मेरा ख्याल है कोई तकरीबन रफली 200 के करीब लैपटॉप अभी तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं. लेकिन I don't believe in counting numbers. It's the gesture that counts. आसान काम नहीं होता, और एक दफा कर लेते हैं, 2 दफा कर लेते हैं, लेकिन 2007 2008 से लेके आज हम 2022 में बैठे हैं. ये करना कोई मामूली काम नहीं है 14-15 साल तक. और न सिर्फ कर रहे हैं बल्कि हो रहा है. The numbers are increasing अल्हम्दुलिल्लाह. तो और उसकी वजह सिर्फ एक है, और वो है नेक नियति. जिस नेक नियति से ये लोग सब मिलके काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल रहा है. आप लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, जो मुझे यकीन है कि आप लोग उसका एहसास कर सकते हैं. वो ये है कि डॉक्टर सोहेल और उनकी टीम अब अकेले नहीं, आप उस टीम का पार्ट है, और आप अपना हिस्सा डालते रहेंगे, और ये रिश्ता कभी सारी जिंदगी खत्म नहीं होना चाहिए. लम्स एक बहुत मशहूर इदारा है पाकिस्तान का, उसके जो फाउंडर हैं बाबर अली साहब, उनका मैंने इंटरव्यू सुना, और उन्होंने अपने एलुमनाई से रिक्वेस्ट की कि साल में 1 दिन की सैलरी डोनेट कर दिया करें. 1 दिन की, 1 साल की, साल में जितने भी पैसे आप कमाते हैं उसमें 1 दिन की सैलरी आप दे दें. 20 करोड़ रुपए उन्होंने जमा कर लिया स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए. अब 1 दिन की सैलरी अगर कोई एक आदमी 1 लाख रुपए कमा रहा है तो कोई 3-3 हजार रुपए होती है. साल में 1 दफा
किसी भी क्वालिफाइड आदमी के लिए 3,000 रुपए देना कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन अगर लोग ईमानदारी से दें तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कितने बड़े वॉल्यूम हो सकते हैं। और यही स्पिरिट है जिससे डॉक्टर सुहेल और उनके तमाम साथी जो हैं वो करते हैं। हम हर साल इस कमरे में जमा होते हैं और मैं ये देखता हूँ कि हर साल लोगों की तादाद बढ़ रही है। शुरू में पहली ही रोक भरती थी, अब आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रहा हूँ पूरा हॉल भर गया है और इंशाल्लाह अगले साल ये हॉल कम पड़ जाएगा, तो शायद दूसरी जगह तलाश करनी पड़ेगी हमें। जो एक नई चीज इस दफा देखी वो थी मेंटोरशिप कम उम्र बच्चों और बच्चियों की, और उसमें ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे बच्चियां 8-8 10-10 साल के यहाँ बैठे हुए हैं और उनके लिए ये एक बेहतरीन मौका है कि मुल्क के एक बेहतरीन इदारे में आए और एक्सपोजर लें और दुनिया और पाकिस्तान के जो बेहतरीन दिमाग हैं उनसे वो तरबियत हासिल करें। आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, मेरी नजर में यू आर द ब्राइटेस्ट ब्रेन्स इन द कंट्री। जितने ज़ही जहानत अल्लाह ताला ने आपको दी है, आप उसके शुक्र अदा करें। नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। और मुझे बड़ी खुशी रही, छोटे बच्चे बच्चियां यहाँ पर मौजूद हैं। इत्तेफाक से एक बच्चा भी नहीं आया है, तो मैं तो पहले तो चाहूंगा कि वाली स्लाइड लगा दे जिनमें इन बच्चों के नाम है, अगर वो स्लाइड लगा सके। बेटा वो स्लाइड लगा दीजिए जिन पे इन बच्चों के नाम थे। डेयर टू डिजाइन की एक स्लाइड थी, बैक करें जी। मैं सबसे पहले तो चाहूंगा ये बच्चे खड़े हो जाए, मैं यहां से इतनी दूर से नाम नहीं पढ़ सकता, यहां से पढ़ देता हूं। अरहम है मौजूद, अरहम खड़े रहे, नहीं वही खड़े रहे, वही खड़े रहे। ईमान, जूबिया, फुरकान, वेरी गुड, अनुषा, हम्माद, बिलाल और शाफे। दैट्स गुड। मेरा ख्याल है they need दो some और भी हैं, सॉरी मैं बीच में आ रहा हूँ, दो बच्चियों के नाम नहीं है इसमें, अफीफा और अफ्तिया का, उन दोनों को भी सॉरी आप बताइए क्या कह रहे थे। मैं कह रहा था कि दो बच्चियों के नाम नहीं है इसमें, रह गए। अफीफा है, यहाँ पे होंगी, दानियाल के साथ होनी चाहिए उन दोनों को। जी जी अच्छा आई नहीं है अभी। अच्छा। बेटा आप भी बैठी हुई, आप भी इनके साथ ही हैं। अच्छा, एक तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है पहचानना। बच्चों आप लोग ये समझे, आप लोग बड़े खुश नसीब हैं कि इस तरह की गाइडेंस इतनी कम उम्र में मिल रही है आपको। लेकिन अब आपका फर्ज बनता है कि जो आप लोगों ने जिस तरह से इसको किया है उसको उसी ईमानदारी से करें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। एक आखिरी बात, बैठ जाए बेटा, बैठिए। एक आखिरी बात मैं करूंगा कि हर साल एक ये कुछ लोगों की तस्वीरें दिखाते हैं और वो सिर्फ जाहिर है कि अल्लाह ताला उन सब तमाम लोगों की मग़फ़िरत करे। सब मेरे करीबी दोस्त थे और सफदर के बारे में तो कुछ कहना वो है, आई नो सफदर फॉर मोर देन माई एज। सफदर से मेरा बड़ा ही अजीब गरीब और करीबी ताल्लुक रहा है। 60 साल तो हम दोस्त ही रहे हैं, आँख खुलने से पहले दोस्त थे हम, लेकिन वो सिलसिला हमसे पिछली जनरेशन में भी जाता है, हमसे आगे की जनरेशन में भी जाता है। हारून किरमानी की तस्वीर देखी बहुत अरसे के बाद, बड़ा शदीद अफसोस हुआ। ये वो वाकया है, हारून की डेथ शायद मैं सारी जिंदगी भूल नहीं सकता। मुझे याद है हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, हारून से मैंने किसी जगह जाने को कहा तो हारून ने कहा नहीं मुझे कहीं और जाना है, और वो मोटरसाइकिल पे अपनी चला गया। एंड अनफॉर्चुनेटली ही मेट एन एक्सीडेंट एन आवर लेटर एट कालापुर एंड ही पास्ड अवे। वो मेरा ख्याल है एनईडी में मैं आखिरी आदमी था जिससे उसकी मुलाकात हुई। एंड ही लेफ्ट, एंड अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। इसको भी मेरा ख्याल है 40-42 साल गुजर चुके हैं, लेकिन वो मेमोरी मेरे जहन में इतनी क्लियर है, आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे। सर एनीवे, मैं सिर्फ आखिर में ये कहूंगा कि बच्चों को मुबारकबाद दूंगा, सुहेल और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा, और साथ में कहूंगा कि बेटा ये जो जिम्मेदारी आप पर पड़ी है इसको एहसन तरीके से निभाइए, और जब भी वक्त आए अपना हिस्सा जरूर डालिएगा। बहुत शुक्रिया। Just stay there, sir. You have to distribute the laptops among the students, and I would like to call Mr. Kawaj Jamil sir is not here, so I would like to call the names of students one by one, and you have to come and take your laptops.
Shall we start? Okay. First up, Aqsa Zaid. Second one, Dahika. Fawad Hussain. Ikra Tariq. Maaz bin Tariq. Mohammad Mudassir. एक सेकंड मोहम्मद मुस्लिम, मोहम्मद यूनुस, मुकद्दस अली, मुजम्मिल रजा रिजवी, सना खालिद, शहजाद बुक्टी, सैयद हिलाल हुसैन, जीशान हैदर, जुबैर अख्तर, अब्दुल सबूर, अदैश लाल, हनीफुल्लाह, मोहम्मद अरम हैदर, जैनुल आबिदीन, and last one, Zakirullah. Thank you so much, sir, and have a seat. Now I would like to call Dr. Sohail Ahmed, जो हमारे साथ वीडियो लिंक पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और I would like to call him to conclude the ceremony and have a few words with us. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सरोज, शुक्रिया आपका। एज यूजुअल आपकी और आपकी टीम जो है हमें स्पीचलेस कर देती है हर दफ़ा। खूबी ये है कि ये काम जितने भी हो रहे हैं ना, ये इस वजह से हो रहे हैं कि आपने वाकई एक बहुत ज़बरदस्त टीम इकट्ठा कर रखी है वहाँ पे, जिसको CSA ऑफिस कहा जाता है। अली आपके साथ बैठे हुए हैं, डॉक्टर अली, और मैं समझता हूँ इन्होंने जिस तरह मैनेज किया है, लेकिन ये तमाम चीज़ें लीडरशिप्स के ऊपर हैं। जितने भी लीडर्स आए आपसे पहले और आप ग्रूम करके गए इन सबको, शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत कि आपने बच्चों की इतनी मदद करते हैं। मैं तो इनसे कहता हूँ ये तो दो कमा रहे हैं, कमाइयाँ हैं इनकी। एक तो वो जो कि गवर्नमेंट सैलरी दे रही है उनको, लेकिन जो दुआएं ले रहे हैं ना ये लोगों की, उसका
कोई पूछ नहीं सकता कितनी दुआएं मिलती होंगी इन सबको। मैं अपनी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर सुरेश। इट्स बीन अ प्लेजर वर्किंग विद यू, इट्स बीन एन ऑनर कि हमारे पास आप जैसे लोग हैं जो कि यूनिवर्सिटी को एक सही शक्ल देखना चाहते हैं जो यूनिवर्सिटीज की होनी चाहिए। It takes time and effort, and I know that how much effort you guys are bringing into the table. ये जो एफर्ट आपने देखा छोटा सा हम लोगों का नया जो शुरू किया है, ये मेरा प्रोग्राम था यहाँ पे ईस्टर्न के ऊपर। मैंने कोई 5 साल पहले शुरू किया था बच्चों के लिए ये प्रोग्राम, और जब हमने इंटरनेशनलाइज किया लास्ट ईयर तो हमने कहा कि पाकिस्तान नहीं था इसमें, तो हमने कहा कोशिश करके इस दफा हमने अपने स्कॉलर्स के थ्रू इनको मेंटरशिप प्रोवाइड करी। वरना सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि बच्चों को कंट्रोल कौन करेगा, और ये माशाल्लाह बहुत जीनियस बच्चे हैं। आपका भतीजा उनमें से एक है, आज आया नहीं वो, लेकिन ही इज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, और हम अभी तक सोच रहे हैं कि उसके सॉल्यूशंस किस तरह लाके देंगे उसको, उसके जो आइडियाज हैं, इट वाज अ ग्रेट आइडिया। और यही बात इन तमाम बच्चों में, अगर हम सही तरीके से इन बच्चों को संभाल लें अभी, तो ये हमारी काया पलट देंगे। ये इतने जीनियस हैं बच्चे, इतने जीनियस हैं, ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस लाते हैं, ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस लाते हैं कि हम खुद सोच नहीं सकते। तो थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी कि हम इनको शोकेस कर सके। और सबसे बड़ी बात और आखिरी बात जो मेरी है कि हम कई दफा से ये सोचते थे कि हम अपना ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे स्टार्ट करेंगे जो कि उन्हीं बच्चों के साथ हो जिन्होंने हमारे साथ वक्त गुजारा है, जो गुजरे हूँ उस तमाम रास्ते से, जहाँ पे ये आज जो बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर के, ये अब गुजरेंगे। वही लोग सबसे अच्छी तरह से पहचान सकते हैं उस रास्ते की कि उसमें कहाँ कांटे हैं, कहाँ खाइयां हैं, और किस तरह बच के निकलना है उससे। और वही बच्चे फिर जब लीड करेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, तो हम जो वर्ड चैरिटी का यूज करते हैं, इंशाल्लाह चंद सालों के बाद हमको ये यूज करना नहीं पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने बच्चे जो स्कॉलरशिप होल्डर थे और अब ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो अब माशाल्लाह कंट्रीब्यूट करते हैं। वी आर एबल टू कलेक्ट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम देम लास्ट ईयर। मैं अलग से बताना नहीं चाह रहा था इस दफा लेकिन मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से रिपोर्टिंग करवाऊंगा उसकी कि वो कितने बच्चे थे जिन्होंने ये पैसे करे कलेक्ट। और अगर हमारे पास वो एक अमाउंट नंबर ऑफ पीपल हो जाएं जितने चाहिए हमको, तो हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग जो हैं खुद इस ऑर्गेनाइजेशन को अपने पांव पे खड़ा कर देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू अगेन फॉर गिविंग अस टाइम। होपफुली अब आपकी जो बातें हैं वो बच्चों को ज्यादा समझ में आएंगी, आप इतने क्लोज हैं इन बच्चों के। और थैंक यू अगेन हमारे जो एनईडी के जो मेरे साथी हैं, फर्रुख, आजाद, उस्मान, आरिफ, थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस आउट ओवर हियर। मैं समझता हूँ कि ताबिश, उमैद, रईस, ताहा और इकरा और जो दूसरे हमारे साथी हैं, इन बच्चों को अब इसको लीड करना है, इनको लेकर चलना है ऑर्गेनाइजेशन को आगे, इनको फ्लरिश करवाना है, इनको देखना है हमारे बाद। हम आज होंगे हैं यहाँ पे, कल नहीं होंगे, लेकिन इनको रह के इनको लेके चलनी होगी ये तमाम बातें। थैंक यू फॉर ऑल फॉर मैं अप्रिशिएट करूंगा आप लोग थोड़ा सा टाइम इन बच्चों के साथ गुजारें, खाएं पिए थोड़ा सा और बच्चों के साथ थोड़ा सा गुजारें, उनसे सवालात करें। अभी इनको ग्लोबल कंपटीशन में हिस्सा लेना है, वहां पे बहुत बोलना होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। एक चीज मैं ऐड कर दूं सिर्फ इन बच्चों के लिए खास तौर पे कि एनयूडी यूनिवर्सिटी की तमाम फैसिलिटीज इनके लिए अवेलेबल है। जो बच्चे इनको मेंटोर कर रहे हैं, जरूरत है लैब्स की, किसी चीज की, तो डोंट हेजिटेट टू आस्क डॉक्टर अली, ही विल कोऑर्डिनेट। और डॉक्टर आमिर कुरैशी यहाँ बैठे हैं, इज डायरेक्टर इंडस्ट्रियल लिएजन आल्सो। इन दोनों में से किसी आजाद से कर लें, और अगर कोई हर्डल होगी तो आई विल सॉर्ट इट आउट। तो बच्चों, ऑल द फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर यू। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अब कुछ लोग रिफ्रेशमेंट्स वगैरह हैं, और सेरेमनी जो है ऑफिशियली फॉर्मली एंड है, और ग्रुप्स को आप विजिट कर सकते हैं और उनके प्रोजेक्ट्स को आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। और पिक्चर्स का भी सेशन है, और तो जिनको लैपटॉप्स मिले हैं तो वो एक एक करके पिक्चर्स के लिए जा सकते हैं।
हम सर सब लोग अपनी फोटो खींच रहे हैं।